Fire doesn't plan disasters, lack of awareness does. A very good afternoon to one and all present here. On behalf of JCI Kalangut, in association with the Village Panchayat Kalangut, I extend a very warm welcome to our dignitaries, officers, guests, and all you members come here today for the Fire Safety Awareness Program. A small spark can turn into a dangerous situation within seconds. But awareness, preparedness, and the right knowledge can save lives. Today's program is designed exactly for that purpose, to educate, demonstrate, and empower our community with essential fire safety measures. I now request President of JCI Kalangut to kindly escort our dignitaries to the dais. Please give all our dignitaries a huge round of applause. To formally welcome everyone gathered here today, I request President of JCI Kalangut, Ms. Riya Pradap, to kindly deliver the welcome address. Respected dignitaries on the dais, the Sarpanch of Village Panchayat Kalangut, officers from the Fire and Emergency Service Department, past President of JCI Kalangut, Punch members, hotel owners, shop owners, staff members, and to all the dear people over here. A very good evening to one and all. I, President, on behalf of JCI Kalangut, take great pleasure in welcoming each one of you for today's Fire Safety Awareness Program. Firstly, I would like to extend a warm welcome to our respected Sarpanch, Mr. Joseph Sequeira, sir, whose constant support helps us to take such impactful initiatives. I also extend a very warm welcome to the Station Fire Officer, Mr. Sri Krishna Ravindra Parrikar, Sub-Officer, Mr. Deepak Soma Shedgaonkar, and all the officers from the Fire and Emergency Service Department Fire Station for taking their time from their busy schedule to guide us and share their valuable knowledge and experience. A very warm welcome to our past President of JCI Kalangut, whose leadership and guidance continues to inspire our chapter. We welcome you, Shri Premanand Devkar, sir. I will also like to welcome the Secretary and the Punch members of Village Panchayat Kalangut for their presence and encouragement. My sincere welcome also goes to the owners, the staff members of hotels, shop owners, and business establishment who have joined us today for this important awareness program. And finally, a heartfelt welcome to all the residents and the people gathered here today. Once again, I warmly welcome each one of you and wish you a very informative session ahead. Thank you. Thank you, ma'am, for your warm words of welcome. I now request the Sarpanch of Village Panchayat Kalangut, Mr. Joseph Sequeira, to kindly share his opening remarks and guide us into today's awareness program. Good evening, everyone. On the dais we have our fire services official, Parrikar, and Shedgaonkar, the secretary, and our past JC president, Mr. Premanand, then my Punch member, and the president of JCs, Miss Parab. And my dear friends,
It's indeed, I congratulate the Kalangut JCs for organizing the fire safety. It is very important to have this information because we lack knowledge. Because everyone thinks that we know everything, but when it comes to fire, then we will not know how to handle these situations, the fire items. All these years, even the panchayat was not aware that we had to take a permission from the fire safety until the incident took place in Arpora. And now it is mandatory that fire NOC is a must. Some people still feel that why should we? माझे एकूच शॉप आसा रे, माझे एकूच 4 स्क्वेअर मिटर शॉप आसा आनी कितें आनी कसले प्रोग्राम. So in fact I congratulate again the JCs and the members who are here for organizing this type of activities in the village of Kalangut. Though I was not prepared for it, and now I am sure that some light will be put upon you all and on us also, because we had knowledge, but it was all half knowledge. Now we will have all the knowledge where our official Mr. Parikar and Savaikar will give us guidance how to operate this fire extinguisher. I thank each and every one of all for coming and listening to us. I know sun is there still. Actually, we had to have it at 5 o'clock, but sorry about it. So we are having it. Sun is there. So again, I thank each and every one of you all for having come over here and gracing this occasion. Thank you. Thank you, sir, for your encouraging words. Every awareness program becomes meaningful because of the experts who guide us. I now invite JC Ishika Chodankar to introduce our respected officer who will be conducting today's fire safety awareness session. It gives me immense pleasure to introduce this amazing personality. With 30 years of dedicated service in the fire and emergency services, he currently serves as a station fire officer and is presently holding charge as the officer in charge of Fire Station Pilang. Throughout his distinguished career, he has demonstrated exceptional courage, commitment and leadership in service to the community. In recognition of his outstanding contribution, he is the proud recipient of Chief Minister's Gallantry Award, Chief Minister's Meritorious Service Award, and the prestigious President of India Fire Service Medal. Ladies and gentlemen, can we have a round of applause for Mr. Shri Krishna Ravindra Parikar, sir. I now invite Arya to introduce our next respected officer who is present here today with us. With an outstanding 33 years of dedicated service in the fire and emergency service, he has been a very senior instructor known for his vast knowledge and expertise in training across various modules of firefighting. Throughout his remarkable tenure, he has successfully trained more than 5,000 candidates, shaping and mentoring generations of fire service personnel. In recognition of his commitment and meritorious contribution to the department, he is also the proud recipient of the Chief Minister's Fire Service Medal for Meritorious Service. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Deepak Soma Shedgaonkar, the sub-officer. Thank you, Ishika and Arya. We would also like to present a floral welcome to our Sarpanch, Mr. Joseph Seguera. Our Secretary, Mr. Arjun Velip. Ward Member, Mr. Francisco Rodriguez.
Past President of JCI Kalangud, Founder President, Mr. Premanand Dukar. President of JCI Kalangud, present President of JCI Kalangud, JC Riyaparam. Now comes the most important and informative part of today's program. Fire safety is not only about theory, it is about knowing what to do at the right moment. So without further delay, I invite our respected officers to kindly take over for the session and guide us through the fire safety awareness demonstration. Good evening, everyone. Respected dignitaries on the dais, the Sarpanch of Village Panchayat, Sir Joseph Sir, Secretary of Village Panchayat, Arjun Velip, Punch Member, Alex Sir, ex-JCI President, Dulkar Sir, and present JCI President, Madam Parab. First of all, I will thank you all for making your presence here for this awareness program which has been organized by the JCI in collaboration with the Village Panchayat of Kalangud. As तुमकां सगळ्यांक इतल्या व्हडल्या संख्येन पळोवन खोशी जाता की यू हॅव एन eagerness to learn something which you don't know or you may know in better way. आता उजो जो लागता तो आमकां सांगून लागना, अचकीत लागता or by negligence of by man-made जाता. So there are two types of fires which is called a good fire and bad fire. जे तुमकां आमी आयज सांगतले आनी तुमच्या फुडल्यान हांगासर जे एक्सटिंग्विशर्स दवरल्या ते तुमी थोडे ताका सिलिंडर्स म्हणटात बट टेक्निकल नांव ताका फायर एक्सटिंग्विशर्स आसा. तुमकां जर पळयलें जाल्यार तुमी म्हणटाले स एक्सटिंग्विशर दवरले तितून कितें फरक आसा तो फरक तुमकां आयज हांगासर आमी सांगतले. फॉर वॉट पर्पज यू हॅव टू यूज दॅट, वेन यू हॅव टू यूज दॅट, हाव यू हॅव टू यूज दॅट. हे तुमकां एक आमकां अर्द वर तुमचे कडेन आमी मागता 30 मिनिट्स. देन आफ्टर दीस ब्रिफींग वी वील टेक यू टू द डेमॉन्स्ट्रेशन प्लेस वेर यू वील हॅव टू हँडल दीस फायर एक्सटिंग्विशर. वील पुट ऑन द फायर आनी तुमी आमकां तो पालोवन दाखोवंक जाय in a better way that you are ready for any eventuality if it happens in your house or in your premises where you work, for safety of yourself and the guest and your family. Thank you so much. Deepak, please take it. Okay. मुकेश सर, हिंदी जानता है ना, मैंने देखा तो हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, हम डायरेक्टली जाएंगे फायर के ऊपर. आपने देखा होगा फायर मोस्टली हर जगह पर हम बोलते हैं कि फायर ए गॉड गिफ्ट. उजो फायर हम कोंकणी में बोलते हैं उजो, हिंदी आग. सो ये है कि फायर जो है एक्चुअली गॉड गिफ्ट हमको भगवान ने दिया एक ऐसा देन जो है जिसका इस्तेमाल करके हमको क्या करना है, अपना जीवन जो है आगे बढ़ाना है. लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है कि जब तक हम उसको कंट्रोल में फुल्ली उसको ठीक तरह से केयर करेंगे, मेंटेन करेंगे और ठीक तरह से अगर उसको संभाल लेंगे तो ही हमको वो यूजफुल होता है. जो फायर हम लगाते हैं अगर आप उसको चाहे तो इंक्रीज डिक्रीज करते हैं और नहीं चाहे तो बंद करते हैं. ऐसे फायर को हम बोलते हैं कंट्रोल फायर. जिसका कंट्रोल जो रहता है अपने ऊपर रहता है वो ऐसा वाला फायर, इसको बोलते हैं गुड फायर. ये गुड फायर कभी भी हमको लॉस नहीं करता है, ऑलवेज फायदेमंद रहता है. उसका एडवांटेज हम हर रोज लेते हैं. लेकिन ऐसा फायर जो लगाने के बाद या लगने के बाद कंट्रोल के बाहर रहता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता. आप अगर डिक्रीज करने के लिए, बुझाने के लिए जाएंगे तो बुझ नहीं जाता है. उसका कंट्रोल वो अपने आप लेता है. उस फायर को हम बोलते हैं अनकंट्रोल फायर, बैड फायर. और ऐसा वाला जो आग रहता है उसका लॉसेस क्रिएट करता है, वो कभी भी हमको फायदेमंद नहीं रहता है. और वैसा वाला फायर को कैसा टैकल करना है
उसको कैसा हैंडल करना है, उसको कैसा कंट्रोल में करना है, तो वही हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो अनकंट्रोल फायर, कंट्रोल फायर के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे तब, तो आप जानते हैं अनकंट्रोल फायर जो है ये लॉस क्या क्रिएट करता है। नॉर्मली लॉस क्या क्रिएट करता है? प्रॉपर्टी। मोस्टली जब आग लगती है तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? पूरा जल के खत्म हो जाती है। प्रॉपर्टी लॉस मीन्स फाइनेंशियल लॉस। हम पूरा बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, किधर से लोन बोरो करते हैं या किधर से अपने दोस्त या नेबर से पैसा लेके वो अपना घर या शॉप या इंडस्ट्रीज बनाते हैं। और ऐसा एक सिचुएशन, एक सिंगल सा इंसिडेंट, एक सिंगल सा कुछ ऐसा इंसिडेंट हाफ एन आवर में पूरा अपना जो पूरा साल का जो इन्वेस्टमेंट खराब कर देंगे, लॉस में जाता है। इसके कारण बहुत सारे लोग सुइसाइड भी करते हैं। पूरा लॉस होने के बाद, फाइनेंशियल लॉस होने के बाद सुइसाइड का भी डिसीजन लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी लॉस मीन फाइनेंशियल लॉस। सेकेंड लॉस जो है लाइफ लॉस। जो लाइफ लॉस आपने गोवा में भी देखा है, लेकिन जब तो ऐसा सिचुएशन आता है तो बहुत सारे लोग जम मारते हैं या स्मोक इनहेल करके पूरा मर जाते हैं। ये पब्लिक ही में नहीं मर जाते हैं, लेकिन हमारा फायर फाइटर भी कभी कभी आग बुझाते समय अपना जान गवा देता है। तो ये सेकेंड जो लॉस है फाइनेंशियल लॉस, सॉरी लाइफ लॉस। एंड थर्ड लॉस जो मेजर लॉस है एनवायरमेंटल लॉस। जब मेजर फायर हो जाता है तो अलग अलग तरह का जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो जल जाता है। उसके कारण बहुत सारा जलने की खातिर बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस क्रिएट जो होते हैं, और एनवायरनमेंट में मिलने के बाद उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पूरा एरिया पोल्यूटेड हो जाता है, और उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट बर्ड, एनिमल्स, ट्रीज सबके ऊपर होता है और लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ये सब अगर अवॉइड करना है, ये सब के ऊपर अगर हमको कंट्रोल करना है, तो हमारा एक्सपर्ट क्या बोलते हैं कि 95%, 90 to 95% ऐसा इंसिडेंट, मेजर फायर का इंसिडेंट मैन मेड, बिकॉज ऑफ मैन, हमारे गलती के खातिर ये सब कुछ 90 to 95% हमारे गलती के खातिर हो जाता है। हमारा एक तो केयरलेसनेस, हमारे लिए भाई नेग्लिजेंस, अभी हमारा जो हमने लाइफस्टाइल बना दिया है, इतना बिजी बना दिया कि एक ही टाइम हम 2-2, 3-3 काम करते हैं। हमारे लिए ऑलवेज हम थिंक करते हैं कि अभी इतना काम मैं कैसा करूँगा, इसके प्लानिंग ही मैनेजमेंट में होता है। इसके लिए हमको टाइम कम हो जाता है, तो इसके लिए हम 2-2, 3-3 काम साथ में करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इंसिडेंट होने का चांसेस 100% क्रिएट हो जाता है। सो इसको हमको अवॉइड कैसा करना है, इसके ऊपर हमको कैसा काबू पाना है, तो हमारे हाथ में है। अगर 95% या 90 to 95% ये जो केसेस बिकॉज ऑफ मैन, सो हमको ही ऐसा तैयार होना चाहिए ताकि ये आग एक तो लगना नहीं चाहिए, लग भी गया तो उसको बुझाने के लिए आना चाहिए। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला है कि हर एक आदमी ने, हर इंडिविजुअल ने 3 फील्ड के ऊपर एक्सपर्ट बनना है। अगर हर एक आदमी ने अगर 3 फील्ड के ऊपर एक्सपर्ट बन गया तो आग लग ही नहीं सकती है, और लग भी गई थी आप ऑटोमेटिकली बुझा सकेंगे। तो पहला फील्ड जो है जिसके ऊपर हमने एक्सपर्ट बनना है, एजुकेशन। एजुकेशन किसका? एजुकेशन एक बुक वाला एजुकेशन नहीं। एजुकेशन यानी आग यानी क्या है, आग कैसी लगती है, आग लगने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आग कितना तरक्की रहती है, आग बुझाने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, वो सॉल्यूशन यूज करने के लिए, आग के ऊपर मारने के लिए कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, और वो इक्विपमेंट हम कैसा हैंडल करते हैं, ये सब एजुकेशन पार्ट में आता है। तो ये हर एक इंडिविजुअल ने इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सेकेंड जो है प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। सेकेंड फील्ड जो है प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। प्रिवेंशन यानी आग नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमने क्या क्या प्रिवेंशन करना, प्रिवेंटिव प्रिकॉशन लेना है। चाहे वो अपना घर हो, चाहे वो अपना ऑफिस हो, चाहे वो अपना बिजनेस हो, हर जगह पर हमने क्या ऐसा प्रिकॉशन लेना है ताकि आग न लग सके, यानी प्लानिंग। सेकेंड जो है प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। प्लानिंग यानी ऐसा कुछ हो गया इंसिडेंट, तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, हमने उसको कैसा टैकल करना है, ये सेकेंड। एंड थर्ड जो है एक्सटिंक्शन, मीन्स अगर इतना करने के बाद भी अगर आग लग जाती है तो आग को इनिशियल स्टेज में कैसा कंट्रोल करना है,
ये आना चाहिए। अगर ये इनिशियल स्टेज में अगर आपको हमने कंट्रोल किया तो आप मेजर बन नहीं सकती है, और मेजर नहीं होगा तो अपना प्रॉपर्टीज, लाइफ एंड एनवायरनमेंट बचाने के लिए हम मददगार हो सकते हैं। क्लियर है? सो फर्स्ट पार्ट जो है हम एजुकेशन, उसके ऊपर थोड़ा पूरा डिस्कशन और सीखेंगे। सेकेंड फायर प्रिवेंशन एंड प्लानिंग, एंड थर्ड एक्सटिंक्शन। ये 3 फील्ड जो है आज इस सेशन के दौरान हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन। तो आप लोगों ने जाना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा आग कैसा होता है, लेकिन आपने देखा है, लेकिन वो आग जलने के लिए क्या क्या चीज, क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत है, ये आपने नहीं देखा होगा। सो नॉर्मली जो आप आग देखते हैं उसके लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है आग लगने के। जैसे कि हम आप कौन सा भी एक किचन में प्रोडक्ट बनाते हैं, चिकन या बटर चिकन, तो उसको बनाने के लिए अलग अलग चिकन लगता है, तो मसाला चाहिए और कुछ चाहिए, तभी तो उस कुछ बटर चिकन या चिली चिकन बनता है। ऐसा ही फायर, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स की जरूरत होती है। एक फ्यूल, सेकेंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड हीट। ये 3 इक्वल बैलेंस रेशियो में एक जगह पर जब मिलते हैं तभी आपको वो फ्लेम दिखती है, आग दिखेगी, अदरवाइज आग नहीं होती। इसमें से एक भी कम उधर आया तो आग नहीं सकती। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये एलिमेंट जो है फ्यूल। ये फ्यूल यानी क्या है? आप लोग बोलेंगे फ्यूल यानी डीजल, पेट्रोल। नो, फ्यूल यानी जिस चीज को, कौन सा भी मटेरियल हो जिसको आग लगती है उसको हम बोलते हैं फ्यूल। वो सॉलिड फॉर्म में आ सकती है, लिक्विड में आती है, और गैसियस फॉर्म में भी मिलती है। सो जिस चीज आप भी, अभी आदमी भी, मैं भी क्या है, कौन से में आ गया? फ्यूल में आ गया। मेरे को भी आग लगती है, आदमी को भी आग लगती है, तो आदमी भी क्या आ गया? फ्यूल हो गया। जिस चीज को आग लगती है उसको हम बोलते हैं फ्यूल। नॉर्मली फ्यूल यानी डीजल, पेट्रोल, ही ऐसा चीज नहीं है जिसको लगती है आग, वो फ्यूल है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को। क्लियर है? सो नेक्स्ट चीज जो है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन भी नहीं मिला तो आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन तो नेचर में बहुत सारा है, आपने देखा हुआ है, विदाउट ऑक्सीजन हम भी जी नहीं सकते। तो नॉर्मल ऑक्सीजन नेचर में अवेलेबल है 20.93, 21% अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट है, और उसको आग लगने के लिए 16% की जरूरत है, मिनिमम 16%। उसके नीचे गया, आपने देखा होगा कभी भी कचरे को आप आग लगाते हैं, लगाने के बाद आग नहीं लगती, सिर्फ धुआं आता है। बाद में आप क्या करते हैं? उसको मुंह से फूंक मारते हैं। फूंक मारना मीन्स क्या देते हैं? उसको ऑक्सीजन देते हैं। वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है? जलने के लिए सफिशिएंट उसको ऑक्सीजन मिलता है, आग जलने के लिए शुरुआत होती है। स्कूल में बच्चे, जब हम स्कूल में सीखते समय एक टीचर हमको दिखाती थी, एक कैंडल उधर लगाने के बाद उसके ऊपर ग्लास उल्टा डालते थे। सर्टेन टाइम में क्या हो जाता था? वो कैंडल में जो फ्लेम है वो क्या हो जाती है? बुझ जाती है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, लेस ऑक्सीजन, वो ऑटोमेटिक बुझ जाती है। इसीलिए ऑक्सीजन का भी जरूरत होता है। फ्यूल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो नेचर में बहुत सारा है, फ्यूल भी बहुत सारा है, और तीसरा चीज जो है हीट, गर्मी। फ्यूल, ऑक्सीजन है, हीट तो इधर भी है, लेकिन आग नहीं लग रही है। क्यों? उसका बैलेंस रेशियो नहीं बन रहा है। अभी भी कभी भी हम सिर्फ वही एग्जांपल, कचरे को आग लगाते समय एक्सटर्नल हीट देते हैं, कभी मैच से या लाइटर से क्या करते हैं, कौन सा पेपर जलाते हैं, बाद में उसको लगाते हैं, बाद स्लोली क्या होता है, खुद का वो आग क्रिएट करती है और पूरा कचरा जो है जल जाता है। तो ये तीनों एक जगह पर जब मिलते हैं बैलेंस रेशियो में, तभी वो आग जो प्रोडक्ट बन जाता है। आग बुझाते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं एग्जैक्टली? उसी में है, उसमें से एक किसी को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। एक क्या करते हैं? कम करते हैं। ऑटोमेटिक क्या होता है? आग बुझ जाता है। सो कभी भी आप लोगों को आग जब देखते हैं, आग लग गई, इसका मतलब समझना है कि ये तीनों इक्वल रेशियो में, इक्वल बैलेंस रेशियो में क्या है? उधर प्रेजेंट है। इसीलिए क्या हो रहा है? आग जल रही है। क्लियर है? तो आग का भी अलग अलग पार्ट है, कंप्लीट कंबशन एंड इनकम्प्लीट कंबशन। वो ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बोलते हैं कंप्लीट कंबशन मीन्स, कभी भी आपने
देखा है, रियल आग को देखा है, कभी भी क्या होता है, एक प्रोडक्ट रहता है, आग का भी प्रोडक्ट रहता है, कभी भी कौन सा भी आग चलने के बाद कुछ भी चीज उसमें डाल दिया तो क्या हो जाएगी, जल जाती है। इसका मतलब इट प्रोड्यूस हीट। कौन सा भी आग, रियल फायर क्या करता है, प्रोड्यूस हीट। सेकेंड, रात के समय अगर वो जल जा, रात के समय अगर वो आग जल रही है तो प्रोड्यूस लाइट। सब पूरा एरिया क्या हो जाता है, लाइटेड हो जाता है, दैट मीन्स प्रोड्यूस लाइट। और वन मोर एक प्रोडक्ट रहता है स्मोक, हीट, लाइट एंड स्मोक। आग लगती मीन्स ये तीन प्रोडक्ट क्या करते हैं, दर्शाते हैं कि इधर तो आग है, हीट, लाइट एंड स्मोक। स्मोक भी दिखता है तो आप कभी भी बोलेंगे इधर आग लग गई है, लेकिन हर जगह पर स्मोक नहीं मिलेगा। आपने देखा है ना, हर जगह पर आग लगती है लेकिन स्मोक क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में जो किचन में एलपीजी जलता है उसको स्मोक आता है, उधर भी आग है, लेकिन उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। दैट मीन्स 100% कार्बन पार्टिकल जिस जगह पर जल के खत्म हो जाता है उधर कुछ भी स्मोक क्रिएट नहीं होता है, लेकिन आग है। और बाहर जिधर आग लगती है उधर क्या होता है, हीट, लाइट एंड स्मोक। दैट मीन आप समझ जाते हैं कि इधर आग जल रही है, तो दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। जिधर 100% कार्बन पार्टिकल क्या नहीं होते हैं, जलते नहीं है, जो नहीं जलता है वो हीट यानी स्मोक क्रिएट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट जो है इफेक्ट। कभी भी आप जब आग लगती है, किधर भी आग लगती है तो आप क्या करते हैं, पहले आग आग बोलने के बाद आपका एक्शन क्या होता है, क्या करेंगे, क्या मारते हैं, पानी। यस, बेटर, दौड़ के जाके किधर से पानी मारते हैं, आग कंट्रोल में आ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। दैट मीन्स उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। मीन्स जो हमने बोला फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल ऑफ फायर। उसमें से जब पानी मारते हैं तो ऑटोमेटिकली किसको लेस करते हैं, हीट, गर्मी। गर्मी को लेस करने के बाद ऑटोमेटिक आग बुझ जाती है, बैलेंस रेशियो कोलैप्स हो जाता है, आग बुझ जाती है। उस प्रोसेस को हम पानी जिसके ऊपर मारते हैं उसको बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। लेकिन हर जगह पर हम पानी नहीं मार सकते। फॉर एग्जांपल लिक्विड फायर, जो घर में जो ऑयल को आग लग गई या पेट्रोल को आग लग गई तो उसमें हम पानी मार दिया तो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगी। तो उधर हमको हीट यानी कूलिंग इफेक्ट नहीं कर सकते, हीट को नहीं निकाल सकते। उस जगह पर हमको ऑक्सीजन को लेस करना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मोदरिंग एंड ब्लैंकेटिंग इफेक्ट। जो ट्रायंगल ऑफ फायर में से हीट को नहीं निकालते, फ्यूल को नहीं निकालते, किसको निकालते हैं, ऑक्सीजन। ऐसा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम किसी को हीट को और फ्यूल ऑक्सीजन को नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन आग तो बुझाना है तो हम फ्यूल को लेस करते हैं। फ्यूल को लेस करना मीन्स क्या है, स्टारवेशन इफेक्ट, उसको बोलते हैं स्टारवेशन इफेक्ट। फ्यूल को लेस करना मीन्स सिंपल चीज, अगर समझो इधर कौन से एक चेयर को आग लगे, आप लोगों ने क्या किया, बाकी सभी चेयर उधर से डिस्टेंस, बहुत डिस्टेंस के ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, उतना ही वो जल के बुझ जाएगा। कभी कभी सिलेंडर जो आपका गैस, किचन का गैस रहता है, सिगड़ी को आग लगे मीन्स बर्नर को आग लगे, आपने रेगुलेटर बंद किया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, जो सप्लाई है उसको क्या किया, आपने तोड़ दिया। इसको बोलते हैं हम स्टारवेशन इफेक्ट। तो ये इफेक्ट करके हम आग को कंट्रोल करते हैं। कूलिंग इफेक्ट जो सॉलिड के साथ कर सकते हैं मीन्स पानी मारना, लिक्विड के साथ हमको स्मोदरिंग एंड ब्लैंकेटिंग जो ऑक्सीजन को निकालना, और कभी कभी फ्यूल को जब हम निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम स्टारवेशन इफेक्ट। ये हमारा आग बुझाने का एक इफेक्ट हो गया। अभी आग जो है अच्छी तरह से और इजीली कंट्रोल करने के लिए हमने आग के क्लासेस किया है, आग के अलग अलग क्लास तैयार किया है ताकि आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन एग्जैक्ट आग के ऊपर, उसी आग के ऊपर मारने के लिए मिलना चाहिए और फास्टेस्ट उसको कंट्रोल करने के लिए आना चाहिए। तो क्लास 4 तरह के हमने क्लास किया है, ए, बी, सी एंड डी। जो अल्फाबेट में ए, बी, सी एंड डी 4 तरह का क्लास। ए मीन्स कार्बोनेशियस फायर, कोण सा भी प्रोडक्ट जलने के बाद एश, गोबर म्हणतात कोकणी आम्ही, उड़ता, जिसके ऊपर हम पानी मारते हैं आग बुझा सकते हैं। जो हम सॉलिड फायर वो क्लास ए में आ गए, जैसे कि रबर, प्लास्टिक, ग्रास, पेपर्स, वो जलने के बाद एश नीचे रहता है, उस प्रोडक्ट को हम क्लास ए में डाला है, क्लास ए फायर। नॉर्मली उसके ऊपर पानी मार के आग बुझा सकते हैं, सॉलिड फायर।
क्लास बी फायर मीन्स लिक्विड फायर, कौन सा भी लिक्विड, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, एनी केमिकल्स जिसको आग लगती है वो क्लास बी फायर। क्लास सी फायर सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया। गैस फायर, कौन सा फायर, गैस, एनी गैस जिसको आग लगती है, जलन वाला भी गैस रहता है, उसको आग लगती है, वो कौन सा क्लास में आया, सी। एंड लास्ट डी जो क्लास जो है मेटल फायर, जो स्पेशली इंडस्ट्रियल एरिया में होता है, उसके लिए बहुत सारा टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो नॉर्मली जो ए, बी एंड सी, ये तीनों क्लास को हम नॉर्मली हर जगह पर देखते हैं और उसी को कंट्रोल करते हैं। तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे ये तीन क्लास के ऊपर, ए, बी एंड सी। क्लियर है? फिर से उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। आग यानी, आग को हम एक डिफाइन किया है, आग यानी द केमिकल रिएक्शन ऑफ हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ये तीन एलिमेंट मिलने के बाद आग क्रिएट हो जाती है। बाद में आग लगने के बाद जो हम बुझाते हैं इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट्स, स्मॉदरिंग एंड ब्लैंकेटिंग एंड स्टारवेशन। उसके बाद में हमने बोला है क्लास का क्लासिफिकेशन, ए, बी, सी, डी। ए यानी लाउडली ए यानी कार्बोनेसियस फायर, सॉलिड फायर जिसके ऊपर पानी मार सकते हैं। क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैस फायर एंड क्लास डी मेटल। क्लियर? एनी डाउट? नो। सो नाउ नेक्स्ट, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, जो सॉल्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो क्या हम ऐसा चीज मारते हैं जैसे कि आग बुझ जाती है, वो अलग अलग जो क्लास है उसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन हमने बनाया। सबसे पहले जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है वाटर, क्या है, पाणी, उदक, इजिली अवेलेबल। आम्ही किती मारतात, चढ वापरतात ते, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये, बिकॉज ऑफ इजिली अवेलेबल हर जगह पर वो पानी मिलता है। विदाउट पानी हम भी नहीं जी सकते। वही पानी हमको क्या करना है, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल। लेस कॉस्टली, उसके लिए ज़्यादा पैसा या पैसा देने का जरूरत नहीं है। लेस हार्मफुल, किस कौन से भी अपने बॉडी को पार्ट को लग गया तो क्या नहीं होता है, कुछ रिस्क नहीं है। नॉन रेसिजुअल यानी कौन से भी कपड़े को लग गए तो दाग ऐसा कुछ उसके ऊपर नहीं रहता, इसलिए। और उसका जो ये रहता है बुझाने का जो ताकत रहता है ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, वाटर, पानी। नेक्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास है पानी बुझाने का, जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया बोलते हैं उसको, फोम। सेकंड क्या है, फोम यानी झाग, फेस म्हणतात त्याला आम्ही, झाग। हम झाग जो डिटर्जेंट से ही बनाते हैं, देखा है ना, कपड़े के लिए धुलने के बाद क्या हो जाता है, पूरा झाग बन जाता है, वैसा ही झाग रहता है। लेकिन ये स्पेशल झाग जो बनाने के लिए एक सॉल्यूशन रहता है, AFFF, एक्वायस फिल फॉर्मिंग फोम कंपाउंड करके एक ऐसा सॉल्यूशन रहता है। वो पानी के साथ मिलाने के बाद वो बनाने के लिए एक इक्विपमेंट रहता है, वो उससे बाहर जब निकलता है वो झाग बनता है। वो झाग जो रहता है, फोम जो रहता है, इतना लाइटेस्ट रहता है, कौन से भी लिक्विड वाले आग के ऊपर वो फ्लोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। और आग जो लिक्विड को लगती है, जिसको ऑक्सीजन मिलता है, उसको क्या करता है, वो कट ऑफ करता है। कभी भी हम पानी जो लिक्विड में पानी नहीं मारते, क्यों नहीं मारते, हम कभी भी बोलते हैं कि लिक्विड में पानी मत मारो, उसके पीछे भी रीजन है, वाई, क्यों। इट इज जो पानी जो रहता है वो हेवी रहता है, क्या रहता है, भारी रहता है। कौन से भी लिक्विड, फॉर एग्जांपल डीजल, पेट्रोल में आप पानी डालो, क्या हो जाएगा, ऊपर फ्लोट हो जाएगा, नो, वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा और लिक्विड को लिफ्ट करेगा, तो वो आग बुझा नहीं सकता है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसीलिए पानी का इस्तेमाल लिक्विड के साथ नहीं करना है। इसके लिए सॉल्यूशन, सेकंड सॉल्यूशन जो है फोम। तीसरा जो है हमारे पास आग बुझाने का जो सॉल्यूशन है, पाउडर। क्या है, ड्राई केमिकल पाउडर। अलग अलग तरह का पाउडर्स आता है जो आग के ऊपर मार के हम बुझाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, मैप यानी मोनो अमोनिया फॉस्फेट करके, ये पाउडर हम क्या करते हैं, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और चौथा जो हमारे पास एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक तरह का गैस जो है, जो आग बुझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो पानी, फोम, ड्राई केमिकल पाउडर एंड
कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब हमको जानकारी क्यों चाहिए कि राइट टाइम के ऊपर, राइट फायर के ऊपर, राइट सॉल्यूशन जब इस्तेमाल करेंगे तभी वो कम से कम टाइम में क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हमने रॉन्ग कुछ सॉल्यूशन इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, वो बुझने की जगह या बंद होने की जगह पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हमको ये एक्सटिंग्विशिंग मीडिया का इतना इम्पोर्टेंट है, ये जब हम जान लेंगे तभी आपको अच्छी तरह से कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जाएंगे, इधर किधर डाउट है तो हम नेक्स्ट जाएंगे इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट हमने इधर आपके साथ फ्रंट में रखा है उसको डिस्कस करेंगे। तो वो इक्विपमेंट में यही सब चीज अवेलेबल है जो हमने अभी डिस्कस किया है। पानी जो है, फोम, ड्राई केमिकल पाउडर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो अभी जो सामने जो आपको दिखते हैं, तो आप लोग सब जगह पर, हर जगह पर, हर मॉल में जाओ, कौन से भी शॉप में जाओ, हर घर में भी अभी अभी क्या है, अवेलेबल है। और इसका नॉलेज, इसका इंफॉर्मेशन, इसका ऑपरेशन आप लोगों को ही चाहिए। इसका इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है, जब आप इनिशियल स्टेज में रहती है तो ही उसका यूज हो जाता है। इनिशियल स्टेज में यूज करने वाला लोग आप ही रहेंगे। हम एक्सपर्ट कब आएंगे, आफ्टर हाफ एन आवर या 20 मिनट के बाद। पर पहले इसी का इस्तेमाल अगर आपने यूज किया तो ही आप हमसे पहले क्या कर सकेंगे, आप लोग कंट्रोल में ला सकेंगे। तो इसलिए ये चीज़ों का जरूरत है आपको ज़्यादा। ठीक है, हम इसको बोलते हैं फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर, इसका टेक्निकल नेम है फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर। उसका स्पेशली यूज आग जब इनिशियल स्टेज में, पहले स्टेज में रहता है तभी इस्तेमाल किया तो आग को क्या हम इजीली कंट्रोल करेंगे। क्लियर है? सो पहला एक्सटिंग्विशर्स, जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया मैंने बोला था कि पानी, वाटर। सो इस फायर एक्सटिंग्विशर हम बोलते हैं फर्स्ट एड पोर्टेबल स्टोर प्रेशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। स्टोर प्रेशर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप यानी एंड स्टोर प्रेशर। स्टोर प्रेशर मीन्स ऐसा उसको प्रेशराइज किया गया है, इजीली यू कैन, आप इजीली क्या कर सकते हैं, ऑपरेट। जस्ट स्विच करने के बाद उसमें जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया हो बाहर आ सकते हैं। वाटर टाइप मीन्स इसमें जो कैपेसिटी है, इसका पूरा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया इसमें क्या भरा है, वाटर टाइप। इसके ऊपर ही आपका नाम पता चलता है, इसमें पूरा पानी, वाटर है। इसमें क्या है, वाटर है। उसका कैपेसिटी जो है 9 लीटर्स, क्या है, 9 लीटर्स। और उसका में एक्सटिंग्विशर में जो मीडिया, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है वाटर, पानी जो है, और एक्सपेलिंग मीडिया, एक्सपेलिंग मीन्स जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया को दबा के बाहर निकालते हैं, उसमें जो स्टोर प्रेशर गैस डाला गया है उसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन। क्या डाला है, नाइट्रोजन एंड पानी। तो पार्ट्स देखो, ये जो है कैरिंग हैंडल, इसको पकड़ के आप किधर भी उसको ले सकते हैं। ऊपर की तरफ जो है वो स्क्वीज ग्रिप, जब इस्तेमाल करते समय हमको दबाने से वो जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया बाहर आ जाएगा। वो कोई भी कौन से भी टाइम पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए क्या दिया है, उसको लॉक किया है, सेफ्टी पिन दिया गया है। ये सेफ्टी पिन जब आप निकालेंगे तभी वो क्या हो जाएगा, स्क्वीज ग्रिप दब सकती है। सामने की तरफ गेज दिया है, प्रेशर गेज। इसका काम है कि ये एक्सटिंग्विशर भरा है, फुल है या एम्प्टी है, ये दिखाता है। जो नीडल है वो ग्रीन जोन में है, दैट मीन्स एक्सटिंग्विशर फुल। रेड जोन मीन्स एक्सटिंग्विशर जो है एम्प्टी। सो आपको कभी भी इस्तेमाल करते समय फर्स्ट हियर आपको किधर देखना है, इधर देख के आपको एक्सटिंग्विशर लिफ्ट करके लेके जाना है। अदरवाइज क्या हो जाता है, आपने नहीं, इसको नहीं देखा, आप रन करके 100 मीटर्स गए, यूज किया, नो यूज, बाद में देखा अरे गेज ठीक नहीं, फिर से रनिंग बैक। दैट मीन्स आप आपको क्या किया, एक्सटेंड, बढ़ने के लिए चांस दे दिया। बाद में उधर जाएगा तो नो यूज, बाद में आके ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सो इधर आपको देखना है। देन डिस्चार्ज ट्यूब एंड नोजल, डिस्चार्ज ट्यूब एंड नोजल। अभी आपको आइडेंटिफाई कैसा करना है, ये पानी वाला है, उसके लिए क्या इधर लेबल दिया गया और बिग लेटर में ए है, बाकी किधर भी मत देखो, ये लेटर देखना है। लेटर क्या है, ए। ए मीन्स
यू कैन यूज ऑन क्लास ए फायर, ये वाला आग के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट मीन इसमें क्या भरा है, और कौन सा भी लेटर नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तो इसमें पानी ही है। अगर किसी ने उसको निकाल दिया तो कैसा पहचान लेंगे? सेकेंड, नोजल, पॉइंटेड नोजल, छोटा वाला नोजल है, मीन्स इसमें पानी ही निकाल सकता है और कुछ नहीं निकाल सकता, इसलिए नोजल। क्लियर है? नेक्स्ट थोड़ा आगे जाएंगे, डिस्चार्ज परफॉर्मेंस, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। डिस्चार्ज परफॉर्मेंस मीन्स ये कितना समय के लिए कंटिन्यूअस यूज कर सकते हैं और जो थ्रो बाहर जाता है वो कितना जाता है। एक बार आपने इस्तेमाल किया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड, कितना सेकंड 40 सेकंड ही बाद में एंड हो जाएगा। और जिसका डिस्चार्ज थ्रो जो है 6 मीटर, कितना मीटर, दैट मीन्स आपको 6 मीटर के रेंज में आपके नज़दीक जाना है। क्लियर है? ये दोनों जो है हम आपको जानकारी के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन हम रिकमेंड करते समय ये नहीं करते हैं। कौन सा करते हैं? पाउडर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम थोड़ा कुछ इसके में ज़्यादा जानकारी दे रहा है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सटिंग्विशिंग मीडिया जो है फोम, फर्स्ट एड पोर्टेबल मैकेनिकल फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स, स्टोर प्रेशर फायर एक्सटिंग्विशर। इसका नाम था वाटर टाइप फायर, इसका है फोम। ये मैकेनिकल, इसमें भी कैपेसिटी 9 लीटर्स, इसमें 7 लीटर यानी 7 लीटर पानी रहता है, 2 लीटर्स फोम सोल्यूशन, AFFF सोल्यूशन करके इसका मिक्सचर अंदर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है? सेम पार्ट, इधर कैरिंग हैंडल, सेफ्टी पिन, स्क्वीज ग्रिप, आगे की तरफ जो है प्रेशर गेज, डिस्चार्ज ट्यूब एंड नोजल। इधर डिफरेंस जो है इसमें और इसमें नोजल। क्लियर है? तो ये नोजल आइडेंटिफाई एक्सटिंग्विशर को करता है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर है, नोजल के ऊपर भी आप पहचान सकते हैं। और दूसरा जो चॉइस है अल्फाबेट A-N-B, इसके ऊपर A-N-B है। दैट मीन्स आप A के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और B के ऊपर, लेकिन A के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि पानी जो है इजीली अवेलेबल है, किधर भी मिलता है। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं है तो इसमें ये कर सकते हैं, ताकि इसमें 7 लीटर वाटर रहता है, यू कैन यूज, बट स्पेशली यूज ऑन क्लास B फायर। B फायर कौन सा है? लिक्विड फायर। ओके, इसका अभी डिस्चार्ज परफॉर्मेंस क्या है? इसका भी सेम है, 40 सेकंड एंड 6 मीटर, 40 सेकंड एंड 6 मीटर, 40 सेकंड चलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर जाएगा। Next, our extinguishing media, carbon dioxide, CO2 gas. Use on class B and C. एक लिक्विड फायर के इस्तेमाल कर सकते हैं और गैस फायर के ऊपर। क्लियर है? और ये भी हमारा जो आपने फॉर्म देखा हो A and B, तो B क्लास के लिए हमारे पास अभी 2 एक्सटिंग्विशिंग मीडिया अवेलेबल है। कौन सा है? फोम है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कैपेसिटी जो है 4.5 kg, 1 किलो में आता है और पूरा लिक्विड फॉर्म में भरा रहता है, 4.5 kg। लेकिन इसका पार्ट्स में थोड़ा डिफरेंस है। उसको कैरी, इसके लिए एक पार्ट्स देखो, और इसमें कैरिंग हैंडल, डिस्चार्ज ट्यूब एंड डिस्चार्ज हॉर्न, ये डिस्चार्ज हॉर्न दिया गया है और किधर भी इसको डिस्चार्ज हॉर्न नहीं है, अलग अलग, हर एक का नोजल अलग अलग है। और इसका ऑन ऑफ ये सिंपल टू ऑपरेट, मीन जस्ट आप स्क्वीज ग्रिप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, कंटेंट बाहर आएगा। लेकिन इधर क्या करना पड़ता है आपको, जैसा नल का जो टैप का जो नल रहता है उसको ऑन करना है, सेम इधर करना है। लेकिन जब ये साउंड देता है, जब ऑन होगा तो बिग साउंड देता है, ये कौन सा भी साउंड नहीं देगा। मोस्टली क्या होता है, ये जब इस्तेमाल करते हैं तो बिग साउंड आता है, साउंड के खातिर लोग क्या करते हैं, डर के उधर ही उसको फेंक के बाहर दौड़ के जाते हैं। सो इधर डरना नहीं है। ये साउंड क्यों आ जाता है उसका भी रीज़न हम बोलते हैं,
जो प्रेशर बार, अभी जो नेचर में जो प्रेशर जो है कितना है 1 बार, कितना है अभी जो आप फील कर रहा है प्रेशर वो 1 बार है, लेकिन इसमें जो फिलिंग के समय जो प्रेशर भरा है 250 बार, 250 बार के प्रेशर में ये कंटेंट अंदर है। जब वो बाहर आता है तो थोड़ा साउंड तो करेगा ही, तो ये साउंड आया, लाउड साउंड आता है, मीन्स डरना नहीं है, वो साउंड बिकॉज ऑफ प्रेशर बार के खातिर आता है। क्लियर है? सो इसका पार्ट्स है कैरिंग हैंडल, डिस्चार्ज ट्यूब, ऑन ऑफ नॉब एंड डिस्चार्ज हॉर्न। इसको इस्तेमाल करते समय और एक कुछ केयरफुल आपको इस्तेमाल करना पड़ता है कि कभी भी इसका इस्तेमाल करते समय ये जो चीज़ है हैंडल उसको ही पकड़ना है, इधर कौन से भी पार्ट को नहीं पकड़ना है, बिकॉज ऑफ जब आप इस्तेमाल करते हैं पूरा आइसी बन जाएगा, उसमें क्या क्रिएट हो जाता है आइस। अगर आपका हाथ इधर पकड़े तो कोल्ड बन, आपका हाथ चिपक जाएगा और स्किन डेड हो जाता है। सो आपको किधर पकड़ना है? हियर। क्लियर? नाउ डिस्चार्ज परफॉर्मेंस, हर एक का डिस्चार्ज परफॉर्मेंस अलग अलग है। इसका जो डिस्चार्ज परफॉर्मेंस है जस्ट 12 सेकंड, कितना सेकंड? ये तो 40 सेकंड, ये 12 सेकंड में खत्म हो जाता है। और डिस्चार्ज थ्रो जो है जस्ट 2 मीटर्स, कितना मीटर? 2 मीटर्स। ओके, बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स कभी भी कौन से भी टाइम और कौन से भी आग के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी इतना हम बोलने के बाद बहुत सारा आपका जॉब अलग रहता है, जब आग लगती है तभी आप क्या करते हैं, इसको देखने जाते हैं, तो उधर कौन सा इस्तेमाल करो, क्या करो, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और आग को आप इंक्रीज होने के लिए चांसेस देता है। सो इसके लिए हमने एक हमारे पास एक्सटिंग्विशर है, A, B and C, तीनों फायर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो इसमें जो एक्सटिंग्विशिंग मीडिया भरा है वो पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। कभी भी आग लग जाए और आपको कंफ्यूजन है इसमें, गो टू दिस पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। ये A, B and C तीनों को क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसलिए इसके ऊपर लिखा है A, B and C। क्लियर? सो इसमें क्या भरा है? ड्राई केमिकल पाउडर मैप, मैप यानी मोनो अमोनिया फॉस्फेट, मोनो अमोनिया फॉस्फेट। ये चीज जो पाउडर है ये तीनों के ऊपर आग कंट्रोल करने में मदद होती है। ओके, सेम इसको भी कैरिंग हैंडल, स्क्वीज ग्रिप, सेफ्टी पिन, डिस्चार्ज यानी प्रेशर गेज, डिस्चार्ज ट्यूब एंड नोजल। इसमें जो कंटेंट है पाउडर, जब बाहर आएगा पाउडर आएगा, इसमें बाहर आएगा फोम पानी और इसमें गैस। तो तीनों का जो प्रैक्टिकल ऑपरेशन, हाउ टू ऑपरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका डिस्चार्ज परफॉर्मेंस जो है 21 सेकंड और इसका डिस्चार्ज थ्रो भी जो है 2 मीटर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा हम रिकमेंड करते हैं पाउडर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन के लिए। ये जानकारी लेने के बाद सबसे लास्ट पार्ट जो है हाउ टू ऑपरेट, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि मोस्ट केसेस में हमने देखा है कि जब ट्रेनिंग देते हैं और एक्चुअल जब ऑपरेट करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाता है कि मोस्टली आग ये एक्सटिंग्विशर को उठा के उसमें आग में फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप एक्सटिंग्विशर को आपको ऑपरेट करना है। तो हाउ टू ऑपरेट, ये जो पार्ट है वो हम लाइव इस जगह पर हम आग डालेंगे, उस जगह पर हम लाइव करेंगे। ठीक है? तो एजुकेशन पार्ट में किसी को डाउट, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। एजुकेशन यानी आग यानी क्या है, आग जलने के लिए कौन सा एलिमेंट्स की जरूरत है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग के अलग अलग तरह के प्रकार, एक्सटिंग्विशिंग मीडिया एंड जो इक्विपमेंट आपको इस्तेमाल करना है, फर्स्ट एड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये आपने अभी डिस्कस किया हमने। किसी को डाउट है? ओके, नेक्स्ट पार्ट प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। एजुकेशन तो हो गया, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। अभी तो आग के बारे में हमने सीखा है, लेकिन आग को प्रिवेंशन करना, मीन आग नहीं लगनी चाहिए, इसलिए क्या क्या हमने प्रिकॉशन लेना है हर जगह पर, चाहे अपना घर हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे अपना शॉप हो, चाहे अपना वर्क प्लेस हो। तो सबसे पहले आता है जो कॉजेस ऑफ फायर जो होता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। इसको प्रिकॉशन यानी ये लेने के लिए क्या क्या लेना चाहिए? सबसे पहले आप जानते हैं
जो आप इक्विप मटेरियल, जो अप्लायंस जो इस्तेमाल करते हैं मटेरियल इलेक्ट्रिक सब कुछ बनाने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। सेकेंड, ओवरलोडिंग, जो आउटलेट अवॉइड ओवरलोडिंग आउटलेट, यानी जो प्लग्स रहते हैं उसके हम ज़्यादा क्या नहीं डालना चाहिए, लोड नहीं डालना चाहिए। कभी कभी टेम्पररी जो हम एक्सटेंशन लेते हैं वो पूरा वायर जो रहता है पूरा अच्छी तरह से अंदर से लेके जाना चाहिए। एक्सपर्ट लाइसेंस इलेक्ट्रिशियंस को ही उससे ही एडवाइस लेना है, उससे ही काम करके लेना है। जो अप्लायंस हम घर में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो तुम्हारा मिक्सर हो, जो भी चीज़ है वो गर्म होता है या कुछ होता है, उसको ऑलवेज देखना है, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ है एलपीजी। आपके घर में जो एलपीजी है उसको केयरफुली हैंडल करना है, उसके लिए भी और एक टॉपिक, हमारा एक स्पेशल टॉपिक रहता है, वो तो हम इधर कवर करने के लिए हमारे लिए 2 घंटे का जरूरत है, उसको हम नहीं करेंगे। एलपीजी जो है, दिया जो भगवान के लिए हम दिया जलाते हैं, उसको लिए प्रॉपर कवर करना है। अगर ओपन चूल्हा है उसके ऊपर जलाने के बाद उसके ऊपर ध्यान देना है। ये पूरा जो है वो चीज़ हमको प्रिवेंशन में देखना है। अगर स्मोक डिटेक्टर्स है उसको भी आप लगा सकते हैं चाहिए तो। सेकेंड थिंग, प्लानिंग यानी ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया तो एग्जैक्टली हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन हम करेंगे, ताकि क्या हो जाता है एग्जैक्टली जब आग लग जाती है तो किसी को भी पता नहीं चलता है तो क्या करना है एग्जैक्टली। तो मोस्टली क्या हो जाता है जब किधर भी आग लग जाती है तो कोई भी लेडीज या कोई ये रहता है अंदर रहता है तो क्या हो जाए, एक मिनट हेलो, ओके। तो क्या करना है एक्चुअली, कभी भी जब आग लगती है या ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके घर में, ऑफिस में, बिजनेस में हो गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ब्रॉड लेटर में अपने घर, ऑफिस या किधर भी ब्रॉड लेटर नियरेस्ट फायर स्टेशन का नंबर होना चाहिए। किसका नंबर होना चाहिए, नियरेस्ट फायर स्टेशन का। क्या होता है एग्जैक्टली, ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेबर के पास जाएंगे, अपने हस्बैंड को फ़ोन मारेंगे और किसी रिलेटिव्स को फ़ोन मारेंगे, इससे एडवाइस लेंगे, बाद में हम आग बुझाने के लिए जाते हैं, उसमें हम टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ भी मत करो। सबसे पहले अगर सिंगल है तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। तो आपके घर में ब्रॉड लेटर में नंबर होना चाहिए। तो क्या हो जाए उस सिचुएशन में हमारे पास फायर का नंबर ही नहीं रहता है, तो एक ब्रॉड लेटर में ऐसा नंबर पेस्ट करना है जगह पर कि हर एक मेंबर वो देख सके। बोलना है कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो गया तो कॉन्टैक्ट टू दिस नंबर। सेकेंड, अगर बात क्या करनी है, मोस्टली क्या हो जाता है हमारे कंट्रोल में फ़ोन आने के बाद हिस्ट्री बोला जाता है, पूरा हिस्ट्री, और टाइम वेस्ट करता है। नो, योर नेम, आपका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और इंसिडेंट के बारे में ही बात करना है। तो हमारा गाड़ी जो है तुरंत 30 सेकंड में बाहर निकलता है। तो ये पहले काम करने के बाद आपका रोल है ट्राई टू एक्सटिंग्विश। आग को क्या करो, बुझाने की कोशिश करो। अगर ये आग नहीं बुझ रहा है तो छोड़ दो उसको, प्रॉपर्टी तो जल रहा है। नेक्स्ट आपका रोल इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मीन्स अगर लाइफ, अभी प्रॉपर्टी चल रहा है, लाइफ तो सेव करना है। घर में अगर कोई हैंडीकैप, बूढ़ा, सिक पर्सन है उसको क्या करना है, उस जगह से बाहर निकलना है। नेबर, पूरा एरिया को खाली करना है और कॉर्डन करना है। कॉर्डन यानी किसी को भी अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करना है, ठीक है। फिर भी हमारा गाड़ी आने के लिए टाइम लग रहा है तो स्टारवेशंस, थर्ड योर एक्शंस। स्टारवेशन मीन्स, अभी बोला मैंने, स्टारवेशन मीन्स अगर किचन में आग लगे, बाहर की तरफ जो चीज है, जलने वाली चीज है, उसको आग से दूर लेके जाना है, ताकि जो आग जलने का स्प्रेडिंग स्पीड बोलते हैं वो लेस हो जाता है। जो घर या जो भी बिल्डिंग 1 आवर में जलेगी, पूरा खत्म हो जाएगा, वो 2-3 घंटे के लिए वैसा ही या बुझ सकती है। अगर तब तक अगर गाड़ी नहीं आ रहा, और एक हमको एक प्रॉब्लम हो जाता है मोस्टली हर जगह पर, ऐसा कुछ कॉल होने के बाद जो हमारे जो लोग उधर आते हैं उस वीडियो शूटिंग निकालते हैं, फोटो निकल के वो इसमें डालते हैं
सोशल मीडिया के ऊपर। वो देखने के बाद वो आग या इंसिडेंट देखने के लिए बहुत सारे लोग उधर आते हैं। आते कैसे ये कार लेके या स्कूटर लेके आते हैं। वो जो पूरा लेन रहता है, रोड रहता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, पूरा गाड़ी पार्क करते हैं, लॉक करते हैं। हमारा गाड़ी पहुंचने के बाद जो 100 मीटर का डिस्टेंस या 200 मीटर का डिस्टेंस हमको कवर करने के लिए कभी कभी हाफ एन आवर जाता है। सो इस सिचुएशन में आप जैसा उधर कोई प्रेजेंट है तो आपको ने क्या करना है कि वो लेन जो है पूरा ओपन रखना है, किसी को अलाउ नहीं करना है कि उधर गाड़ी लगाने की। क्लियर है? ये है हमारा प्लानिंग। तब तक हमारा गाड़ी आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम खुद का प्रॉपर्टी लॉस जो है मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। तो ये सब करने के लिए हमारे पास उस समय बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने उसको क्या करना है, यूज करना है, या इनिशियल स्टेज में आपको कंट्रोल करना है। आप प्रॉपर्टी, लाइफ एंड एनवायरनमेंट में बचाने के लिए मददगार होगा। ठीक है? और लास्ट पार्ट जो है एजुकेशन, प्रिवेंशन, प्लानिंग एंड एक्सटिंक्शन, वो हम लाइव देखेंगे। क्लियर है? थैंक यू। अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको थोड़ा उठना पड़ेगा। चाय नाश्ता हुआ तो अगर 5 मिनट चाहिए तो आप बैठ सकते हैं। होने के बाद मुझे बताइए, हम आपके लेफ्ट साइड में जाके आपको वहाँ एक सी सर्कल में खड़ा रहना है। वी विल टेक एन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। छटाई नहीं है उधर। इसको कैसा इस्तेमाल करना है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट आपको क्या करना है, आप देखने के बाद फर्स्ट यू लिफ्ट, ये एक्सटिंग्विशर को क्या करना है, लिफ्ट करना है। इसका वेट ज़्यादा नहीं था, 15.6 यानी 15 किलो शायद रहेगा। तो इसको क्या करना है, लिफ्ट करना है, रन टुवर्ड्स द फायर। आग की तरफ आपको क्या करना है, रन करना है, नॉट टू वॉक। क्या करना है, बाय रनिंग, भागना है, भाग के जाना है। सी द विंड डायरेक्शन मीन अगर विंड का जो फ्लो जो है ये साइड में है, डोंट गो अगेंस्ट विंड। आप आपके अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको विद द विंड। वाई विद द विंड? आपको विद द विंड क्यों जाना चाहिए? यस, तो आग जो क्या बनाती है, स्मोक एंड हीट। अगेंस्ट द विंड हो गए तो हीट एंड स्मोक क्या करेगा, आपको बहुत दूर पर खड़ा रहने के लिए मजबूर करेगा। तो उसका डिस्चार्ज थ्रो जो है 2 मीटर, कितना मीटर? 2 मीटर। तो 6 मीटर के ऊपर आप जाके इस्तेमाल करेंगे तो नो यूज। सो यू गो विद द विंड, आप आपके साथ जाना है, हवा के साथ जाना है। गो क्लोज टू फायर, आग के नज़दीक जाना है। देन यू ऑपरेट करें। पहले इधर ही आपने ऑपरेट कर दिया, ऐसा दौड़ के गया तो उसका डिस्चार्ज टाइम है जस्ट 12 सेकंड। तो रन करते समय 12 सेकंड खत्म होगा। यू फर्स्ट लिफ्ट, रन टुवर्ड द फायर, आग की तरफ दौड़ो विद द विंड डायरेक्शन, गो क्लोज टू फायर, आग के नज़दीक जाओ, एंड देन यू ऑपरेट करने के लिए सिर्फ तरीका सिंपल है। यू होल्ड दिस डिस्चार्ज वन लाइक दिस, हैंडल को पकड़ना है और ऑपरेट करते समय ये ऐसा फर्स्ट रिमूव सेफ्टी पिन को निकालो। ऐसा ऑपरेट करने के लिए नहीं जाएगा, थोड़ा उसको क्या करना है, होल्ड करना है। और जो टैप ऑन करने के लिए आप कौन से साइड, राइट और लेफ्ट? तो लेफ्ट साइड में क्या करना है, उसको घुमाना है। ये थोड़ा साउंड आएगा, तो थोड़ा साउंड आ जाएगा, इसका मतलब आप कुछ नहीं हो रहा है। इसको डोंट वरी, डरना नहीं है, आप कंटिन्यू कर देंगे। पूरा ऑन करो, पूरा क्या करना है, उसको ऑन करना है। देन लिफ्ट, उसको लिफ्ट करना है। और लिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऐसा लिफ्ट करो और आग की तरफ क्या करना है, आपको क्या करना है, वन प्लेस पे ऐसा होल्ड करके नहीं रखना है। स्वाइप करके क्या करना है, लाइक दिस। आपको क्या करना है, क्लियर? एनीवन वॉलंटियर्स, कोई भी इंटरेस्टेड एनीवन? Very good. Clear है? Yes. Good. Back.
See the wind direction, हवा के साथ, okay, operate. No. जो मैंने बोला था वैसा नहीं किया है। मैंने आप वंस यू ओपन, एक बार आपने ओपन किया, देन यू लीव ये पोर्टेबल है एंड मूव अराउंड द फायर। आपने ऐसा पकड़ के ऐसा, ओके। आपको क्या करना था कि आपको इधर ऑन हो गया तो आप लिफ्ट करो एंड मूव, हर साइड से आपको क्या करना है, ले रहे। तो अभी नेक्स्ट ये एक गलती होया, और इधर देख क्या बन गया है, आइस। सो आपने अगर इधर होल्ड किया तो क्या हो जाएगा, होल्ड बंद, क्लियर है। वन मोर, बैक बैक डालेगा, बैक रन रन। सेम मिस्टेक हियर आल्सो। आपने वही मिस्टेक किया है। मैंने बोला है उसका डिस्चार्ज टाइम जस्ट 12 सेकंड, विद इन 12 सेकंड आपको क्या करना है, आपके ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपके ऊपर इतना कम समय में अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपका मूवमेंट, आपका एक्शन इतना क्विक होना चाहिए। ऐसा पकड़ के किया तो नहीं, नो, गो अराउंड, क्लियर। नेक्स्ट औरत, वन लेडीज, वेट वेट एनी लेडीज, मैडम एक कोने लेडीज, यस, हाँ। सेफ्टी पिन होल्ड, मेरे को थिंग त्यांना लेडी आप वीडियो पा वैसा अगर ऐसा लेडी, तब आपका जो हेयर जो है ना उसको क्या करना है, पूरा बांधना है। और दुपट्टा है तो उसको, लेकिन क्या हो जाता है, आग हो जाते समय ये हेयर फर्स्ट कॉन्टेक्ट आपके में आगे आग जल सकता है। तो बी केयरफुल। अब सेम मिस्टेक, डोंट डू द सेम मिस्टेक, यू जस्ट लिफ्ट एंड मूव। ओके, स्टार्ट। Okay, go. See the wind direction. Okay, go close. Okay, good. Very good. थर्ड अटेम्प्ट में क्या हो जाएगा, हो गया, करेक्ट। सो आग जो बुझाता है, रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। वैसा बुझाता है, ऑक्सीजन का जो लेवल उसको क्या करता है, लेस करेगा, फायर ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। ओके, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ ट्राई केमिकल पाउडर, बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स। और ये जो स्पेशली जो एक्सटिंग्विशर है, क्लोज रूम में उसका ज़्यादा इफेक्ट रहता है। ओपन एयर में थोड़ा हवा का जो रोक रहता है वो क्या करता है, उसको फैल देता है। तो क्लोज रूम में इलेक्ट्रिकल फायर, इलेक्ट्रॉनिक फायर के लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशर है कार्बन डाइऑक्साइड। उससे भी ज़्यादा एक्सटिंग्विशर बेस्ट है पाउडर, तुरंत आग को कंट्रोल करता है। लेकिन उसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज मीन्स जो पाउडर आता है पूरा एरिया को क्या करता है, डैमेज नहीं करता है, थोड़ा गंदा करता है। क्लोज रूम में इस्तेमाल किया तो सफोकेशन होने का चांसेस रहता है। जो ब्रीथिंग होता है हमारा, ब्रीथ करते समय वो इनसाइड जा सकता है, इनहेलेशन। So, next extinguisher, dry chemical powder.
Wait. How to operate? Same. How to operate? Same. You first lift. Here you lift this extinguisher. Then आपको क्या देखना है? Pressure gauge. Second, pressure gauge. उधर pressure gauge नहीं था. इधर आपको क्या देखना है? Pressure gauge. If pressure gauge in green zone, that's okay. Okay. आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपको क्या देखना है? आप इधर ये सेफ्टी जो ये रहता है उसको निकाल सकते हैं. बट फर्स्ट लिफ्ट, see the pressure gauge, don't remove this safety pin. Okay, runs toward the, आग की तरफ दौड़ना है आपको. See the wind direction close to fire. इसको अभी डिस्चार्ज करो जो है 2 मीटर, वो क्लोज टू फायर. देन वर्ड पास, आपने वर्ड पास सुना है? PASS, वर्ड पास. फर्स्ट P means pull the pin. Okay, next A means aim on fire. Third S means squeeze this grip, and last S means swipe on fire. एक पास को आपने अगर पुल द पिन हो गया, एम नहीं किया, डायरेक्ट स्क्वीज किया तो क्या हो जाएगा? ये जो ट्यूब जो है पूरा ऊपर आता है और आपका मुंह को क्या करेगा? वाइट करेगा. सो आप क्या करेंगे? उसको फेंक के मुंह धोने के लिए जाएंगे, तो आप उधर जाएंगे. सो पास, पुल, एम, स्क्वीज एंड क्लियर. ओके, एनीबॉडी वॉलंटरीली, कोई भी. इसका बेस्ट एक्सटिंग्विशर. बंद करो. गुड. अच्छी राइट एक्शन. बेस्ट एक्सटिंग्विशर कौन सा भी आपको तुरंत क्या करता है? एक्सटिंग्विश हो जाता है. लेकिन थोड़ा आपने देखा है जो पाउडर क्या होगा? ओके, नेक्स्ट. एनी फ्रॉम लेडीज नॉट इंटरेस्टेड. देन ओके, गुड. झाले का बाद जबले ओपन केले. सेम एक्शन. शॉर्ट फायर का पूरा. नॉट नाउ. देयर. वेट. जल्दी करो. चलो बेटे कर ले. On the side. ओके, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया, आपको मालूम पड़ गया एक्सटिंग्विशर्स जो यहाँ पे है अलग अलग तरह के, उसको कैसा यूज करना है. आग अगर जो छोटा स्टेज में लेती है फिर उसको किस तरह से बुझाना है, ये अगर आपने ध्यान में रख दिया तो कोई भी आग जो छोटी है वो बड़ी नहीं हो सकती. और इसके ऊपर आपने हर भी ध्यान देना है आपके वर्क प्लेस के ऊपर, जहाँ जो कि अगर आप ये ध्यान डेली रखेंगे, एक्सटिंग्विशर आपका मिडल ग्रीन में है, CO2 एक्सटिंग्विशर आपका भरा हुआ है क्या नहीं है, उसको अगर आपने डेली चेक करना है. अगर किया तो आपको वो हर टाइम यूज करने के लिए
ट्रेनिंग पोजीशन नहीं है। आप सभी लोग यहाँ पे आज इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए। JCI इन कोलैबोरेशन विद कलंगुट विलेज पंचायत यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप यहाँ पे आए बड़ी संख्या में, इसलिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। हमारे डायनेमिक सरपंच विलेज पंचायत कलंगुट के जोधव सर, उनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको प्रोग्राम करने की अनुमति दी। और जब भी आपको कभी भी हमारा ज़रूरत पड़ा तो आप हमें कॉल करके बुला सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग भी कहाँ देना है, just send us a letter and we will be there for you at any moment of time. Thank you so much for your valuable time. Thank you so much, sir. Anyone who would like to give a feedback? किसी को कुछ बोलना है? इस सर ने सब कुछ बताया, डेमोन्स्ट्रेशन किया, किसी को कुछ फीडबैक देना है? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? और मुझे experience over here, we have learned a lot of things over here, how to control our fire and how to use the extinguisher. So that's all I want to say. Thank you so much. Thank you so much. Anyone else? Thank you so much, sir. Very good experience, but each and everyone has to take this forward for protection of, to take care of fire. Thank you. Thank you so much, sir. सर म्हाका एक क्वेश्चन विचारूंक जाय। BC फायरचो विशय आहा तो आमी इलेक्ट्रिकलार यूज करूंक शकता, सो तेजे आमकां शॉक बी कितें येवंक शकना। ना येवंक ओनली जो फर्स्ट टू एक्सटिंग्विशर वॉटर एंड फोम टायप तातूंत उदक असल्या कारणान तो वापरूंक शकना। फॉर इलेक्ट्रिकल फायर बेस्ट एक्सटिंग्विशर कार्बन डायऑक्साइड एंड ड्राय केमिकल। एक्चुअली कितें आसता, इलेक्ट्रिकल फायर जो आसता न्हय, इलेक्ट्रिकल फायर जो आसता जेन्ना आमी स्विच ऑफ जाता किंवा MC डावन पडटा तेन्ना तो करंट जो रावना न्ही, भितर उरना, तेन्ना तो A फायर प्लास्टीक एंड हें आसता। पूण आमी ते यूज करप, आमी यूज करप एक तर कार्बन डायऑक्साइड और उदकय मारूंक शकता, पण आमी मारूंक शकता एक्सपर्ट। तुमी बेस्ट वे ऑर्डर एंड इस्तेमाल कर सकते हैं। DC वाला जो इलेक्ट्रिक फायर DC वाला है, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, BC यानी लिक्विड एंड गैस के ऊपर, एक के ऊपर भी। एक के ऊपर क्या हो जाता है, आपने एक समझो एक वुड जल रहा है, वुड जलने के बाद आपने इस्तेमाल किया, इसका एक्शन कैसा होता है, रिड्यूस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ये वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको कम करता है और आग बुझ जाता है। आग बुझ जाएगी लेकिन फिर से ऑक्सीजन मिलने के बाद वो वुड फिर से, इसलिए एक के ऊपर छोड़नी। और एक्सटिंग्विशर ह्यूमन बॉडी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के ऊपर ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। नहीं, अगर ह्यूमन बॉडी, अगर आदमी को आग लगता है तो सबसे पहले स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। स्टॉप ड्रॉप एंड रोल मीन्स कौन सा भी आदमी को जब आग लगता है तो दौड़ने के लिए लगता है। अगर दौड़ने लगा तो क्या हो जाएगा, उसको बहुत प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलेगा और पूरा हर पार्ट क्या हो जाएगा, जलने शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रनिंग स्टॉप करना है, ड्रॉप मीन जमीन के ऊपर लेटना है और रोल करना है। जब रोल हो जाता है तो जो पार्ट जमीन को टच होता है उससे ऑक्सीजन कट हो जाएगा और आग बुझेगा। डोंट यूज एक्सटिंग्विशर। सिंपल, ये तो नहीं मिलेगा आपको। आपका बेस्ट सोल्यूशन है स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। आप देन यू ब्लैंकेटिंग और मेडिकल को। थैंक यू सो मच सर। और एक बार जोरदार तालियां दीजिए सर के लिए। Gratitude is the best way to acknowledge the time and knowledge shared with us.
To present pleasantries as a token of appreciation, I request our Sarpanch of Village Panchayat Kalangut, Mr. Joseph Sequeira, to kindly step forward and hand over a token of appreciation to Mr. Shri Krishna Ravindra Parikar. Thank you so much, sir. To present a pleasantry as a token of appreciation, I request our President of JCI Kalangut, Ms. Riya Parab, to kindly step forward and present a pleasantry to Mr. Deepak Soma Shekhankar, Sub-Officer. I request all the other officers to please step forward and accept a small token of appreciation. I would now request our Sarpanch to please give closing remarks. आयज आमी सगळ्यांनी पळयलें कसो आमी हो उजो पालयता तो हे उजाक कसो पालयता तो आमचो पर्रीकर साहेब आसलो शेटगांवकर साहेब आनी तेजे स्टाफ जेणे हांगा आपणाचो टायम वेस्ट करून हांगासर येयले आनी तुमी तुमचो मोलादीक टायम वेस्ट करून तुमी हांगा येवन हे आमचे लायव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन पळयलें त्या पासत हांव सर तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचे प्रेसिडेंट रिया परब स्वता नांव रिया परबाक आनी तेजे सांगात्याक सगळे मेंबर्सांक तांकांय चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेणेंनी हो आमचो प्रोग्राम आयचो तेणेंनी घडोवन हाडला आनी विलेज पंचायत इज जस्ट ट्रॅकिंग देम कित्याक असो उजो ज्या दिसा आमकां आरपोरा लागलेलो तो आतां आमी हांगासर दाखयला कसो पालोवन जावचो आतां रिसंटली 4-5 दीस जाले आमकां दिवाय वाड्यारय तसोच उजो मेळटलो हांव नकळो तेन्ना लागीं एस्टिफिकेशन आसलें वो नासलें पूण भितर माती आशिल्ली दर्याचे देगेर सो आनी उदक घातलें सो त्या पासून हांव कितें म्हणटा वी हॅव टू बी अलर्ट आमी अलर्ट जायना जाल्यार आमचे सगळे उरपोन वयतले आयज आमचें कितें जालां की तेका उजो मेळटला मरे हांव हांगासर उबो रावन पळयता वी शूड गो एंड हेल्प देम इट इज नॉट दॅट दे आर सफरींग वी ऑल हॅव टू गो इफ इन केस यू आर देर यू हॅव टू गो एंड सपोर्ट देम एंड गिव युअर सम हेल्प फॉर देम so that one life or some of their equipment will be saved. In this, I really thank each and every one of you all for coming over here, spending your time for some time for like this kind of demonstration, and we will be doing more demonstration for our check owners. आम्ही विचार घडये वयतले नाजाल्यार आमी आमच्या बोडक्या वाड्याचेर ते आमचे हॉल हा ती करतले एंड अगेन वी वील बी आमचे JCI सपोर्ट करतली पंचायती हो प्रोग्राम करपाक रायट इतले म्हणसर हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू ऑल वेरी मच. Thank you so much for those words and always providing us with your support. To formally express gratitude to everyone who contributed to the success of this program, I request the Secretary of JCI Kalangut, JC Ishika Chadankar, to deliver the vote of thanks. On behalf of JCI Kalangut, it is my privilege to propose a vote of thanks for today's Fire Safety Awareness Program organized in association with the Village Panchayat of Kalangut. First and foremost, I would like to express our heartfelt gratitude to our respected Sarpanch, Mr. Joseph Sequeira sir, for his constant support and encouragement in organizing initiatives that benefit the safety and well-being of our community. We are equally thankful to all the Panch members and all the staff members of the Panchayat for their cooperation and presence today.
A very special thank you goes to our dedicated Goa State Fire Force officers and their entire team who took the time to share their valuable knowledge and practical insights about fire prevention and safety. Your guidance today has surely made us more aware and prepared to handle emergency situations. I would also like to thank the press media for covering today's event. I would like to extend our sincere thanks to the hoteliers, retailers and residents of Kalangut who joined us today. Your presence shows how our community values safety and preparedness. My heartfelt appreciation also goes to my entire JCI Kalangut team for their hard work, coordination and commitment in making this program successful. Lastly, I thank each and every person present here today for taking the time out from their busy schedules to be a part of this important awareness program. With this, I once again express our sincere gratitude to everyone who contributed to the success of this event. Thank you and have a safe day ahead. Thank you so much, Ashika. I now request the President of JCI Kalangut, Ms. Riya Parab, to kindly step forward and officially adjourn the program. The Fire Safety Awareness Program held at Village Panchayat Kalangut is hereby adjourned for safe journey home. Thank you so much, everyone. Let me take a leave. Please stand in attention for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।